So, a very good afternoon, everyone. So, we were doing the topic National Welfare Schemes for Women in India, right? So, we have discussed about Ujjwala Yojana, है ना? यहाँ तक हमने discuss कर दिया था previous lecture में. And now the next topic or next scheme for the welfare of women is Rajiv Gandhi National Credit Scheme for the children of working mothers, right? सो ये जो राजीव गांधी नेशनल क्रेस्ट स्कीम है ये उन मदर्स के लिए है जो कि वर्किंग है, राइट? तो उनके बच्चों के लिए ये स्कीम है which provides a daycare facilities to the children in the age group of 0 to 6 years from families with monthly income of less than 12,000. ठीक है, तो ये उनके लिए है जो जिनकी मंथली इनकम जो है वो 12,000 है फैमिली में, ठीक है? एंड चिल्ड्रन एज ग्रुप जो इसमें इन्वॉल्व है दैट इज 0 to 6 years. In addition to being a safe space for the children, the crèche provides services such as supplementary nutrition, preschool education, emergency healthcare, etc. Right? So next comes Central Social Welfare Board. So the main women welfare related schemes and programs being implemented by CSWB are Family Counseling Centers, Awareness Generation Program and Condensed Courses of Education for Women. तो Central Social Welfare Board के अंदर mainly जो आते हैं वो Family Counseling Centers आते हैं, ठीक है? और General Awareness programs आते हैं, ठीक है? और Condensed Courses of Education for Women वो इसमें involve होते हैं. Then next आता है आपका National Mission for Empowerment of Women, that is NMEW. So it is an initiative of the Government of India for empowering women holistically. So it is a centrally sponsored scheme sanctioned in April 2011 and acts as an umbrella mission with the mandate to strengthen intersectoral convergence. And after this comes Working Women's Hostel Scheme. So this scheme is for the provision of safe and affordable hostel accommodation to working women, single working women, women working at places away from their hometowns, and for women being trained for employment, right? Then next is STEP. STEP stands for Support to Training and Employment Program. So this program is also for women and was launched as a central sector scheme during 1986 to 87. It aims at making a significant impact on women by upgrading skills for self and wage employment. So the target group includes the marginalized, assetless rural women and urban poor. ठीक है, तो जो rural women है जिनके पास assets की कमी है या फिर जो अर्बन पुअर वुमेन है उनके लिए ये था. एंड इट मेनली फोकस्ड ऑन अपग्रेडिंग द स्किल्स फॉर सेल्फ एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, अपने लिए भी और ताकि वो अर्न कर सके उसके लिए भी इनके स्किल्स को एनहांस किया जाता था. देन है स्वाधार स्कीम. So this is also under the Ministry of Women and Child Development and it had been administering Swadhar scheme since 2001 for women in difficult circumstances. So this was mainly for the women who were surviving in difficult circumstances. So under the scheme, temporary accommodation, maintenance and rehabilitative services are provided to women and girls rendered homeless due to family discord, crime, violence, mental stress and social ostracism. Then another scheme with similar objectives or target groups, namely short stay home, is being implemented by Central Social Welfare Board, जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया, CSWB, राइट? तो उस आधार स्कीम में टेम्परेरी अकोमोडेशन जो है वो दी जाती थी उन वुमेन को जो कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से आई हैं, ठीक है, जिनको फैमिली डिस्प्यूट से आई हैं, वायलेंस से आई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से, क्राइम का शिकार हुई हैं, या कोई उनको मेंटल स्ट्रेस है उसकी वजह से, या फिर वो सोशली उनका बायकॉट कर दिया गया, ठीक है, उनके लिए टेम्परेरी जो है वो किया गया और रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती है अंडर स्वाधार स्कीम. देन लेटेस्ट अपडेट आती है इसके अंदर आपकी नेशनल वेलफेयर स्कीम्स फॉर वुमेन इन इंडिया में, दैट इज रेगुलेशन ऑफ मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स. ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा आजकल मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे भी बहुत ज्यादा क्राइम्स जो है वो होते हैं. So, in the view of the increasing number of crimes committed against the women on account of information shared on the matrimonial website, it was decided in consultation with Department of Electronics and Information Technology and with Ministry of Home Affairs and service providers to look into the issue and to put in place a regulatory framework in order to check this misuse. Then extending maternity leave duration. So the WCD ministry has been working to extend the maternity leave period for working women to 7 months to enable them to provide exclusive breastfeeding to children for 6 months and after childbirth and complementary foods thereafter to help reduce incidence of malnutrition. तो अभी 6 months की चल रही है ये and now they are focusing to
एक्सटेंड दिस लीव टू 7 months, ताकि 6 month तक वो ब्रेस्ट फीड करवा सके और नेक्स्ट 1 month में जो ऑल्टरनेटिव फूड बच्चे को देने चाहिए तो वो इंट्रोड्यूस कर सके, so that we can reduce the incidence of malnutrition. The Ministry of Labour and Employment has considered and carried out suitable amendments in the act, which are as follows. So enhancement of maternity leave under Maternity Benefit Act 1961 from existing 12 weeks to 26 weeks. अभी ये extend हो चुकी है, ठीक है. So the extension of maternity benefit to adopting mothers and commissioning mothers, then establishment of crèche facility within the office or factory premises, जहाँ पे भी वो work कर रही है वहाँ पे crèche की facility हो, so that she can take the child along. Then in the last session of the parliament, the bill in this regard was passed by Rajya Sabha only. Then mandatory mention, लेकिन जो ये maternity leave की भी बात हो रही है ये भी extend हो चुकी है, it is up to 26 weeks only, right? Then mandatory mention of widow's name on death certificates. So to ensure that a widow is facilitated to get all her entitlements after the death of her husband. So WCD Ministry is working with the Office of the Registrar General of India as well as the state governments to ensure that the name of the widow is compulsorily mentioned in the death certificate of her husband. ठीक है, क्योंकि death certificate पे wife का नाम नहीं लिखा जाता था, लेकिन अब अगर किसी के हस्बैंड की जो है वो डेथ हो गई है, द वुमन इज नाउ अ विडो, तो उसके डेथ सर्टिफिकेट पे जो है वो नाम लिखा जाता है, सो दैट जितनी भी इंटाइटलमेंट के लिए वो मतलब क्लेम करना चाहती है या वो राइट रखती है इंटाइटलमेंट्स के लिए, वो सारे उसको टाइमली मिल सके. देन दिस इज ऑल अबाउट द national welfare schemes for women in India, right? So we are done with this topic as we have discussed about the scheme. Now moving towards the next topic, that is National Family Welfare Program. So the next topic is that is National Family Planning Program, or you can say National Family Welfare Program. ठीक है, ये topic हम discuss करेंगे आज. So coming to the introduction, India has traversed a long and arduous path since launching the first ever family planning program in the world in 1952. The program has further evolved from a targeted approach to a target-free approach and has now been annotated as a critical intervention to reduce maternal and child mortality and morbidity beyond a simple strategy for achieving population stabilization, right? So unmet need for family planning. So what is unmet need for family planning? So currently married women who are not using any method of contraception but who do not want any more child or want to wait like for 2 or more years before having another child are defined as having an unmet need for family planning. ठीक है, so the woman who is married but she is not taking any contraceptive measures, right, and who do not want any more child and would even want to wait for like 2 or more years for having a child, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं like unmet need for family planning. So the National Family Health Scheme 4 reports total unmet need of 12.9% currently married women, right? So for spacing method it is 5.7%. Then next आता है आपका family planning methods. So for delaying the first child, ठीक है, first child को delay करना, so the best methods are condoms, combined or oral contraceptive pills. Then POPs are there, like that is progestin only pills. Then सैंड क्रोमा, ठीक है, ये छाया जो आती है आजकल गवर्नमेंट में. देन IUCD, उसमें आपका कॉपर टी आ जाएगा. देन इंजेक्शन MPA जिसमें अंतरा इंजेक्शन का नाम आता है अंतरा. देन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, नॉट टू बी यूज्ड एज अ रेगुलर मेथड. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो एज अ रेगुलर मेथड जो है वो यूज नहीं करना चाहिए. देन है फॉर हेल्दी स्पेसिंग बिटवीन 2 चाइल्ड बर्थ, ठीक है, सो अगर स्पेसिंग मेथड जो बेस्ट है दैट आर कॉन्डम्स, देन combined oral contraceptive and progestin only pills. Then Sancroman जिसका मैंने आपको नाम बताया छाया के नाम से आती है. IUCD injection MPA which is coming under the name of Antara, right? Then for limiting future pregnancies, ठीक है, future pregnancies को limit करने के लिए जो best method है that is फीमेल स्टरलाइजेशन और मेल स्टरलाइजेशन. फीमेल स्टरलाइजेशन में आपका ट्यूबेक्टमी आ जाता है, मेल में आपका वेसेक्टमी आ जाएगा, एंड IUCD आ जाएगा आपका, ठीक है, कॉपर टी, एंड विच इज टू बी रिप्लेस्ड एवरी 5 to 10 years डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉपर टी विच हैज बीन इंसर्टेड, राइट? सो दीज आर द फैमिली प्लानिंग मेथड्स. देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा इसमें कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, राइट? Number 1 comes IUCD. So IUCD में आपके 2 types की आती है. One is copper 380A and another one is copper 375. जो copper 380A है that is for
like 10 years, and copper 375 is for use up to 5 years. And it can be inserted in a woman immediately after childbirth up to 48 hours of delivery or after 6 weeks of childbirth. ठीक है, या तो डिलीवरी के इमीडिएटली हो जाए या फिर डिलीवरी के 48 आवर्स के अंदर वो करवा सकती है इसको इंसर्ट, अदरवाइज फिर 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी करवा सकती है, राइट. देन हाउ इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी. इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म. तो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करती है ये. So what all are the advantages? So it is very effective method. No activity needed by women after insertion. मतलब एक बार insert हो जाएगी तो there is like nothing to do for the woman, like, right. Then effective immediately after insertion and immediate return of fertility after removal. मतलब जैसे ही लगाएंगे वैसे ही इसका activity जो है वो start हो जाएगी और जैसे ही remove करेंगे तो मदर की जो fertility है वो वापस आ जाएगी. Then no effect on the breastfeeding. Then use as both long term and short term. देन नेक्स्ट आपका आता है इसका लिमिटेशन एंड साइड इफेक्ट्स. सो लिमिटेशन में आ जाएगा पॉसिबिलिटी ऑफ माइनर साइड इफेक्ट जैसे कि लॉन्गर एंड हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ब्लीडिंग और स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स, और देयर कैन बी मोर क्रैम्प्स और पेन ड्यूरिंग पीरियड्स. एंड इट डज नॉट, हाँ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक कि ये किसी भी तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करता जैसे कि कॉन्डम करता है, ठीक है. और एचआईवी को भी प्रिवेंट नहीं कर सकता, ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट, ठीक है. देन इट रिक्वायर्स अ ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू इंसर्ट एंड रिमूव द आईयूसीडी. सो ये जो है वो घर पे हम खुद इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो चाहिए. देन इट मे बी एक्सपेल्ड स्पॉन्टेनियसली इन अ फ्यू केसेस. ठीक है, कई बार क्या होता है ये अपने आप ही बाहर आ जाती है, बस ये बहुत रेयर केसेस होते हैं. सो यू कैन पुट इट पुट दिस एज अ लिमिटेशन, बट इट हैपेंस इन रेयर केसेस. Then who can use the method? ठीक है, so those who are breastfeeding or those who have just had a delivery or an abortion or have or had breast cancer or have headaches or have high blood pressure, diabetes, liver or gallbladder disease, epilepsy, non-pelvic tuberculosis or are HIV positive and or have AIDS who are clinically well. ठीक है, जिनको HIV positive है या AIDS है लेकिन वो clinically जो है वो ठीक है, मतलब उनमें symptoms जो है वो अभी इतने ज्यादा नहीं आ रहे. Then who cannot use this method? So IUCD are not for the women who are pregnant or who are having infections of genital organs, right? Then women with AIDS who are not clinically well, मतलब AIDS है उनको but they are not clinically well, उनको sign and symptoms जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं. Then immediately after a septic abortion, तो अगर सेप्टिक अबॉर्शन हुआ है मतलब अबॉर्शन है और साथ में इन्फेक्शन भी है तो उस केस में आईयूसीडी नहीं डालेंगे. देन पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस के केसेस भी जो है कॉन्ट्राइंडिकेशन है. देन डिस्टॉर्टेड यूट्राइन कैविटी, देन अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग इज अनदर कॉन्ट्राइंडिकेशन. अलोंग विद दैट जेनिटल ट्रैक कैंसर है अगर या पेल्विक इन्फेक्शन है, राइट. देन अभी मैंने आपको बताया कि इसको इंसर्ट कब करते हैं, विद इन 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी और 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी. तो ये जो बीच का टाइम है 48 आवर्स से लेके 6 वीक्स फॉलोइंग डिलीवरी, उसमें ये नहीं इंसर्ट करना है. देन मैलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज के अंदर भी हम नहीं इसको इंसर्ट करेंगे, राइट. देन फॉर पोस्टपार्टम आईयूसीडी मतलब आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, किसके अंदर हम आईयूसीडी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट. So the woman is having sepsis infection following delivery, or if the woman has undergone prolonged rupture of membrane for more than 18 hours, then if the woman has have had postpartum hemorrhage which is unresolved, then if the woman is having substantial genital trauma, ठीक है, तो उसके अंदर हम जो है वो postpartum या IUCD insert नहीं करते. देन वार्निंग साइंस, इफ द पेशेंट इज हैविंग आईयूसीडी तो उसके अंदर वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं, राइट. सो इफ देयर इज पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और एब्सेंस ऑफ पीरियड एंड और प्रेगनेंसी सिम्टम्स, उस केस में एक वार्निंग साइन आ जाएगा. देन इफ द वुमन इज हैविंग एब्डोमिनल पेन और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, then if the woman feels or having a sense of foul smell, ठीक है, और unusual vaginal discharge, then that is also a warning sign. Then if the woman is not feeling well or having fever or chills after insertion of this IUCD, then if the woman is having string problems or expulsion of IUCD, ठीक है, so that all can be the warning signs. तो इन warning signs को आप एक short form से आप इसको याद कर सकते हैं, that is PAINS, PAINS, right. So every alphabet has a meaning. Then time for first follow up, ठीक है. So after insertion of IUCD, follow up के लिए कब आना है, ठीक है. So after 1 month और after next menses, ठीक है, after 1 month आएगी या फिर after next menses. Then routine follow up करना है उसको after 6 weeks of child birth. अगर postpartum लगा है तो 6 weeks के बाद उसको follow up के लिए आना है.
देन इंजेक्शन एमपीए, जिसका नाम हमने क्या रखा है अभी, अंतरा, ठीक है। तो अंतरा के नाम से आता है ये, इसका फुल फॉर्म है मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। तो इसमें हार्मोन जो आपका रहेगा और केमिकल रहेगा, दैट इज मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट. So it is basically coming in two types. One is intramuscular injection and one is subcutaneous injection, right? So जो intramuscular वाला है उसका जो A1 dose है, that is equal to 1 vial of 150 mg per liter per ml, right? Then subcutaneous वाला जो है उसका 1 dose जो है that is equal to 104 mg per 0.65 ml. Then injection is given once in 3 months or 13 weeks. ठीक है, तो once in 3 months लगेगा या फिर 13 weeks के बाद लगेगा, and can also be given up to 4 weeks late or 2 weeks early from the scheduled date. ठीक है, तो scheduled date से 4 हफ्ते बाद भी दे सकते हैं इसको और 2 हफ्ते पहले भी लगवा सकती है मदर. Then woman, sorry. Then how it acts, it prevents release of eggs from the ovary. जैसे IUCD हमने पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती है वो. IM ये जो MPA है, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट या अंतरा, इसका क्या काम होता है कि ये एग को रिलीज नहीं होने देती है ओवरी से, राइट. Then next is advantages. So highly effective and reversible method. Fertility returns 7 to 10 months after last injection. And suitable for breastfeeding women and protect against cancer of lining of uterus. तो endometrial cancer से भी prevent करता है ये, uterine fibroids से और iron deficiency anemia से. Then limitation and side effects क्या है? So as we all know, it would also not provide protection against sexually transmitted disease or reproductive tract infection and HIV infection. And once taken, its action cannot be stopped immediately. जब एक बार ले लिया तो इसके action को आप एकदम से stop नहीं कर सकते हैं. Then it causes changes in the menstrual cycle and bleeding. ठीक है, क्योंकि hormonal changes करेगा obviously है ना, तो it can lead to menstrual changes and menstrual cycle में changes आएंगे and ब्लीडिंग में भी होगा, ठीक है. देन हैज टू बी रिपीटेड एवरी 3 मंथ्स टू अचीव डिजायर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट. तो डिजायर्ड इफेक्टिव तभी आएगी जब आप इसको हर 3 महीने के बाद लगवा रहे हो, राइट. सो रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी टेक्स 7 to 10 months फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट इंजेक्शन. तो जब भी लास्ट इंजेक्शन लिया है आपने तो फर्टिलिटी वापस एकदम से नहीं आएगी, 7 to 10 months के बाद आएगी. जैसे IUCD में क्या होता है, एकदम से निकाला और फर्टिलिटी वापस आ गई. इसके अंदर 7 to 10 months लगेंगे, जब लास्ट इंजेक्शन लगा था तब से लेके तब तक. Then decrease bone density, but users are not likely to have fractures. Decreases bone density, then but users are not likely to have fractures, right. Bone density जो है इसके अंदर decrease हो जाती है, लेकिन जो woman होगी, ठीक है, fractures के prone नहीं होती है वो, तो इतनी ज्यादा कम नहीं होती है bone density इसके अंदर. After stopping injection MPA, bone density increases again. You can feel it over here. देन नेक्स्ट है हु कैन यूज द मेथड. ठीक है, सो ये एमपीए जो इंजेक्शन है, अंतरा इंजेक्शन जो है, किसके लिए बेनिफिटेड है, बेनिफिट सबसे ज्यादा है. सो हैव और हैव नॉट हैड चिल्ड्रन, ठीक है, और आर नॉट मैरिड, आर ऑफ एनी एज एंड हैव जस्ट हैड एन अबॉर्शन और मिसकैरेज, और आर ब्रेस्ट फीडिंग, और आर स्मोकर्स, और आर इन्फेक्टेड विद HIV, वेदर और नॉट ऑन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. ठीक है, तो अगर HIV से इन्फेक्टेड है और चाहे आप एंटी रेट्रोवायरल से थेरेपी से आप अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं. देन नेक्स्ट कम्स वुमेन हु कैन नॉट यूज द मेथड. सो वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट लेस देन 6 वीक. देन जिनका, हाँ, जो इन्फेंट को फीड करवा रही है, ठीक है, मतलब सिर्फ इन्फेंट जो है 6 वीक से छोटा है तो उसके अंदर नहीं करवाएंगे. देन अनएक्सप्लेन वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर है, सीवियर सिरोसिस है, लीवर ट्यूमर्स है, बिनाइन और मैलिग्नेंट, क्योंकि लीवर को अफेक्ट करेगा ये, ठीक है. देन माइग्रेन विद ऑरा एट एनी एज. Then if the woman is having current or past history of breast cancer, अभी है या पहले था breast cancer, तो भी नहीं लेना है ये. Then current or history of ischemic heart disease, तो उस केस में भी ये contraindicated है, क्योंकि हार्ट को भी इफेक्ट करता है और लीवर को भी थोड़ा इफेक्ट करेगा. देन डायबिटीज है किसी को 20 साल से ज्यादा, तो उस वुमेन को भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हार्ट को तो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा ही, किडनी को भी, फिर नर्वस सिस्टम को भी करता है. देन हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, ब्लड क्लॉट इन योर लेग्स और लंग्स, हार्ट अटैक और अदर सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो दोज वुमेन हु आर हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब दैट विल बी अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इंजेक्शन. Then side effects इसके commonly देखे गए हैं, that is lighter and fewer days of bleeding, then weight gain, headache, dizziness, breast tenderness. Side effects are not harmful. ठीक है, इतने harmful नहीं होंगे, लेकिन जो bleeding होगी वो थोड़ी few हो जाएगी, light हो जाएगी, मतलब कम दिनों के लिए रहेगी उसको bleeding, और काफी हल्की उसको bleeding होगी periods में. Then that is the common side effect, but that is not much harmful, right?
So usually becomes less or stop within the first few months of injection. Then client can come back anytime if side effects bother her, right? देन नेक्स्ट आ गया आपका लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड. लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड जो है ये दो बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए जो है वो अच्छा माना जाता है ये मेथड, राइट. तो 3 मैंडेटरी क्राइटेरिया के लिए होने चाहिए कि बेबी इज बीइंग ओनली ब्रेस्ट फेड, की जो बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध लेता है, राइट. तो उसको और कोई सॉलिड फूड नहीं चल रहा, ये इसके लिए एक रहेगा. और बाकी ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, ठीक है. सो गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव फीड इज नॉट मोर देन 4 hours during day and 6 hours during the night. तो बच्चे को जब फीड कराना है तो कम से कम जो गैप है 4 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए दिन में, और रात को 6 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब रेगुलर उसको फीड करवाना है मदर को. सेकंड क्राइटेरिया दैट विल बी दिस, राइट. देन menstruation has not returned since the birth of the child. जब से बेबी हुआ है तो menstruation वापस नहीं आए हैं. So that is the another criteria. Then baby is less than 6 months old. तो बेबी जो है वो 6 months से छोटा है. So ये 3 मेथड है जो क्राइटेरिया जो फुलफिल होने चाहिए लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड के लिए, ठीक है. और ये मेथड हम तब यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू हैव स्पेसिंग बिटवीन द बर्थ ऑफ टू चाइल्ड, राइट. देन नेक्स्ट आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आपका दो आ जाएगा, हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल. नॉन हार्मोनल में आपका सेंट्रोक्रोम आ जाएगा, जिसका नाम मैंने आपको छाया बताया है, ठीक है. देन हार्मोनल में आपका कॉन्ट्रासेप्टिव कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आ जाता है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल आ जाती है, ठीक है. देन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आ जाती है, जो कि आपको नॉर्मली नहीं लेनी होती रेगुलर उसमें, ठीक है, बिकॉज इट हैज गॉट साइड इफेक्ट्स. देन कंबाइन, अब हम डिस्कस करेंगे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है. ये हम सारा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर ही आता है, राइट. सो माला इनके नाम से आती है ये. सो इट इज अवेलेबल इन पब्लिक सेक्टर एज अ फ्री सप्लाई, तो गवर्नमेंट सप्लाई में फ्री आती है ये. और 21 हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं इसके अंदर और 7 ब्लैक टैबलेट्स होती हैं, ठीक है. 21 जो टैबलेट्स हैं इसकी व्हाइट कलर की, दे कंटेन लीवोनर्जेस्ट्रॉल 0.15 mg एंड इथेनाइल एस्ट्राडायोल दैट इज 0.03 mg, राइट. और जो 7 ब्लैक टैबलेट्स है दे कंटेन 60 mg ऑफ फेरस फ्यूमरेट, ठीक है. वो फेरस फ्यूमरेट आयरन की टैबलेट्स होती हैं. तो आयरन का भी कौन सा उसके अंदर है, फेरस फ्यूमरेट है. देन 1 पिल टू बी टेकन डेली, एक पिल लेनी है. देन साइड इफेक्ट्स हैं इसके गिडीनेस, नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, राइट. देन इट मेक्स मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर एंड रिड्यूसेस ब्लीडिंग पेन एंड इम्प्रूव्स एनीमिया, ठीक है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये रेगुलर कर देती है मालायन, और ब्लीडिंग को भी इम्प्रूव कर देती है. अगर हैवी होगी तो नॉर्मलाइज कर देती है थोड़ा सा. और पेन जो होती है पीरियड्स के दौरान, उस पेन को भी कम करती है, और ये एनीमिया को भी प्रिवेंट करती है साथ में, क्योंकि इसमें 7 टैबलेट्स हैं वो आयरन की है, दैट इज फेरस फ्यूमरेट. देन वर्क्स प्राइमरीली बाय प्रिवेंटिंग रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी. तो काम इसका सेम है जैसे हमने एमपीए का पढ़ा कि ये एग्स ओवरी से एग को रिलीज नहीं होने देती, ठीक है. सो इट कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम इफ इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट. तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, पता होना चाहिए कि जो वुमन है शी इज नॉट प्रेग्नेंट. एंड शुड नॉट बी गिवन टू ब्रेस्ट फीडिंग वुमन टिल 6 months पोस्टपार्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोस्टपार्टम वुमेन को आपने नहीं देना जो कि ब्रेस्ट फीड करवा रही है, राइट. 6 months का बेबी है जो छोटा है उससे. देन नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं, ये एक तो ये प्रोटेक्शन देता है एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर से, जो कि और कॉन्ट्रासेप्टिव कर सकते हैं कॉज. देन इट आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एज आई हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर स्लाइड, राइट. सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, लेस देन 6 months हुए हैं उसको डिलीवर किए हुए अभी, मतलब उसका बेबी जो 6 months छोटा है और ब्रेस्ट फीड करता है. देन विद सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, राइट. देन हु स्मोक्स मोर देन 15 cigarettes पर डे, उसके लिए सूटेबल नहीं है ये, ठीक है. और साथ में उसकी एज जो है 35 years से ज्यादा है या उससे उतनी है, 35 years है, राइट. देन द वन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ लिवर डिसीज विद हाई बीपी विद ब्रेस्ट कैंसर विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस विद हार्ट डिसीज विद रिकरेंट माइग्रेन और ऑन एंटी convulsants, right. So these all are the contraindications for using mala n. I hope अभी तक आपको सब समझ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. So next we will discuss in next class. I hope this topic is clear to all of you, right. Thank you so much for paying your attention. Thank you.